Next we have theorem 10.12. If the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic. If sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic. It's converse of the theorem 10.11 कि अगर एक cyclic है क्वाड्रिलेटरल तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा. इसमें आपको प्रूव करना है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है देन इट विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो विल डू इट्स प्रूफ सेम एज द क्वेश्चन थ्योरम दिस वन 10.10. ठीक है, इस 10.10 में हमें 4 पॉइंट्स गिवन थे जो हमने प्रूव किया था कि दैट दे लाई ऑन अ सर्कल. सेम यही प्रूफ आप इस थ्योरम के लिए भी यूज करेंगे 10.12. See how? See, the question is that if in a quadrilateral ABCD, sum of opposite angles is equal to 180 degree. If I take B plus D, that means it's given to me that angle B plus angle D is equal to 180 degree, right? तो प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है, मतलब ये चारों पॉइंट सर्कल से पास करते हैं. तो सेम प्रूफ पे आ जाओ 10.10 कि सपोज द सिंगल पॉइंट, लेट्स टेक कोई भी पॉइंट ले लो ए बी सी डी में से. आई एम टेकिंग बी. लेट्स टेक बी doesn't lie on the circle. Suppose B doesn't lie on a circle. So इसके लिए हम क्या करेंगे? Suppose there is an outside point. ठीक है, आउटसाइड पॉइंट से M जो सर्कल जिससे सर्कल पास होता है. तो इसका मतलब ADCM तब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, राइट? अगर M से सर्कल पास हो रहा है देन ADCM विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. दिस इंप्लाइज D plus M is equal to 180 degree. Angle M plus angle D is equal to 180 degree because it's cyclic. But ये हमें already given है. अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है? That B plus D 180, M plus D 180, which is not possible. Either you can say which is not possible or you can say that B and M point coincides. ऐसा possible ही नहीं है कि एक ही लाइन पे टू एंगल्स बन रहे हैं एंड दे आर इक्वल विद द सेम पॉइंट. एक ही पॉइंट से बन रहे हैं एंड दे आर इक्वल, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल. इट विल बी सेम. ओके, ये पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब एम और बी पॉइंट सेम हो गए. सेम हम इंटीरियर के लिए कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था. ठीक है, अगर पॉइंट एम डैश यहाँ पे हो तो भी बात सेम ही है. सो आप सिर्फ एक के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. अगर आपने एक पॉइंट के लिए प्रूव कर दिया कि कहीं आउटसाइड या इनसाइड, दोनों के लिए प्रूफ इज द सेम. ओके, so this shows this is a contradiction, that this implies the circle passes through B, or you can say B lie on the circle. This implies A B C D lie on a circle. This implies it's cyclic quadrilateral, right? Now let's start the exercise 10.5. Let's see the first question here. Now we are to find out the angles here. It's given here A, B, C are 3 points on a circle with center O such that angle BO is 30 degree. AOB is given 60 degree. If D is any other point on the circle other than the arc ABC को छोड़कर other remaining point पे D point है, then find ADC. आपको ये angle find out करना है. It's too easy, right? What will be this angle? See, we have now we will use the theorems here. जो theorems हमने किए हम यहाँ पर use करेंगे वो theorems का. What was the theorem? That angle made by center with the chord भी बोल सकते हैं और with the arc
और ठीक है, एंगल मेड बाय सेंटर is double the angle made by at any other point on the circle. So if this is x, this is 2x. मतलब जो अदर पॉइंट पे एंगल है वो हाफ होता है. ये सेंटर का एंगल हो गया 90 डिग्री ए और सी से. यू कैन सी हियर दोनों ए और सी से जा रहे हैं. सी ए सी को डी से ज्वाइन किया तो ये वाला एंगल बना, ए सी को ओ से ज्वाइन किया तो सेंटर का एंगल बना. तो सेंट्रल एंगल इज डबल द एंगल विच इज एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल. तो 60 प्लस 30 ये 90 है, तो ये आपके पास कितना हो गया 45 डिग्री. राइट, यस, हाफ ऑफ 90 डिग्री 45. okay, let's move to the next second one. A chord of circle is equal to the radius of circle. A chord of circle, let's take like this, a chord of circle is equal to the radius of circle. See, this is the radius of circle. Let's take this as the chord of the circle. Okay, or you can take like this also. This is the chord of the circle and this is the radius of the circle. AB is the chord, OA is the radius. Find the angle subtended by chord at a point on minor arc and also at a point on major arc. Now this is the minor arc. See, this is the minor arc and this one is the major arc. तो आपको एक एंगल माइनर आर्क में बताना है, एक एंगल मेजर आर्क में बताना है. तो फिगर कैसे ड्रॉ होगी इसकी? I have taken this chord, center O, AB. Let's take point C on minor arc, D on major arc. उनको AB से ज्वाइन कर दोगे तो C पे एंगल सबटेंड हो रहा है माइनर आर्क में और D पे एंगल सबटेंड हो रहा है मेजर आर्क में. सेम थ्योरम का यूज करना है. दिस एंगल से 1, दिस एंगल इज एंगल एट द सेंटर और जो D का एंगल है, ठीक है, दिस एंगल इज द एंगल एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल, राइट, एंड दिस ऑल्सो ऑन द अदर पॉइंट. अब सबसे पहले हमें वन एंगल चाहिए. OA किसके इक्वल है? OAB के, बिकॉज रेडियस एंड कोड्स आर इक्वल. तो रेडियस ये भी है, so now it's an equilateral triangle. So this angle is, angle 1 is equal to 60 degree, right? अब आपके पास ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है D. इट्स सो सिंपल, इट विल बी हाफ ऑफ 60 डिग्री, इट विल बी 30 डिग्री, राइट. अब बात आती है C की. व्हाट विल बी द एंगल C? उसमें हम उसको 60 का हाफ नहीं करेंगे. रीजन, हमने जब थ्योरम की थी, इस थ्योरम में हमने 2 टाइप से 3 केसेस लिए थे, जिसमें एक आपके पास था कि अगर आपको एंगल गिवन है दिस वन, ठीक है, दिस इज द एंगल एट द सेंटर, देन दिस इज द एंगल एट एनी अदर पॉइंट, सॉरी, दिस इज द एंगल एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल. की अगर एंगल माइनर आर्क में है तो वो इसका हाफ होगा सेंटर के एंगल का, राइट, क्योंकि ये वाला एंगल मेजर आर्क में है और ये वाला एंगल माइनर आर्क में है, ठीक है. So definitely this angle will be double of this angle. There is difference now. तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे जो 1 को छोड़कर बाकी एंगल, ठीक है. सबसे पहले हम 360 डिग्री में से, कंप्लीट एंगल में से 60 माइनस करेंगे तो हमें ये एंगल मिलेगा 300 डिग्री, राइट. एंड 300 डिग्री, तो आपके पास ये कितना बचेगा, half of 300, that is 150 degree. One more method you can use here. एक और मेथड कर सकते हैं कि अभी हमने किया है कि साइक्लिक होगा क्योंकि A, B, C and D ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं. यू कैन सी हियर दे आर फॉर्मिंग, सी, they are forming a quadrilateral.
4 पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं और 4 के 4 पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इट्स साइक्लिक। साइक्लिक में हमने क्या किया कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180। अब ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 180 डिग्री। Next question is question third. Here you have given PQR angle 100, where PQR points on the circle with center O. Find OPR. आपको एंगल फाइंड आउट करना है OPR, that is this angle. I hope you are getting it. This small angle OPR, right? How to find out this angle now? See, आपके पास ये 100 है, सेम थ्योरम यूज करेंगे। दिस एंगल इज 100 माइनर आर्क में, तो मेजर आर्क का सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, इसका डबल, विच विल बी 200, ठीक है, 200 हो गया, क्योंकि एनी अदर पॉइंट पे 100 है, सेंट्रल वाला एंगल डबल हो जाता है, तो अगर ये 100 है तो सेंटर का एंगल डबल हो जाएगा। अब कंप्लीट एंगल वाली प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो। 360 में से माइनस करोगे 200, ये कितना आ गया, 160 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो OPR ट्राइंगल में। देखो ये O है, ये P और ये R, ये एंगल फाइंड आउट करना है। O हमने अभी फाइंड आउट किया 160 सॉरी, ठीक है, ये वाला P फाइंड आउट करना है। ये दोनों क्या है, रेडियस, रेडियस है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, से x एंड x। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, x प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। 2x is equal to 180 minus 160, 2x is equal to 20 degree, 2 will be divided, then x is equal to 10 degree, right? Again I'm repeating, this is 100, then this is 200, angle on the center, फिर इसका इंटीरियर वाला हो गया 160 by subtracting from 360, फिर ये दोनों रेडियस हैं तो ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए ट्राइंगल के, से xx, so obviously total sum of angle is 180, ये 160 है तो ये दोनों कितने हो गए, 10 and 10. Next question number 4. ABC is equal to 69 degree, ACB is equal to 31 degree. Find BDC. BDC. This angle you have to find out. You can't use angle sum property क्योंकि आपको ना ये वाला एंगल गिवन है ना ये एंगल गिवन है, ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, सी, अब जो D एंगल है वो A के इक्वल है ना, अगर हमें A मिल जाए तो D अपने आप मिल गया, क्योंकि दोनों सेम सेंटर सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। सबसे पहले हम एंगल A फाइंड आउट करेंगे बिकॉज बोथ आर इन सेम सेगमेंट, एंगल A and angle D both are in same segment. So A कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A is equal to 180 minus its sum is 100 degree, right? It will be 80. Then D is equal to also 80. Reason, angles in same segment are equal, right? You have to give the reasons also. Yes. Next, fifth question. A, B, C, D are 4 points on a circle. AC and BD intersect at point E such that angle BC is equal to 130 degree, ECD is equal to 20 degree. Find BAC. This BAC you are to find out here. Again, firstly we can find out D or C. Here you can use two methods. First of all, you will find out D.
ठीक है, डी फाइंड आउट करने के लिए आप टू मेथड्स का यूज कर सकते हैं। एक तो आप लीनियर पेयर यूज कर सकते हैं इस ट्राइंगल में, इस साइड के लिए, या फिर आप डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। अगर आप इंटीरियर लीनियर पेयर यूज करेंगे तो आप पहले 180 में सब्ट्रैक्ट करके ये एंगल फाइंड आउट करेंगे, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके डी फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर आप एक्सटीरियर एंगल प्रूव कर यूज करते हैं 130, so this is exterior angle which is equal to sum of two opposite interior angle. तो 130 is equal to d plus c, यहाँ से d कितना आ गया 110 डिग्री। d is 110, then a is also 110, angles in same segment, right? Next, sixth question is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. Okay, DBC, this angle is equal to 70 degree. BAC, this angle is equal to 30 degree. Find BCD, B, C and D, this one angle, right? BCD find out करना है, BCD, that is this full angle, angle C. C find out करना है आपको. How we will find it out? Here you can use same angles in same segment also. अगर आप देखो AD आपके पास एक कोड है, तो बाकी ये जो दो एंगल्स हैं they will be in same segment. Yes. If you are having confusion in that, so you can use the figure this one also. If you take the ABCD from here, A, B, C, D, then it will be more clear. This point is E. Angle D, BC, this is given 70 degree. BAC, this is given 30 degree. और आपको find out करना है BCD, that is this angle. Right? अगर आप ये cyclic है और अगर आप ये angle find out कर लेते हो तो आपके पास C अब automatically आ जाएगा. ये angle कैसे आएगा? Angles in same segment, C. DC कोड है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, राइट? दो पॉइंट्स पे बन रहे हैं जो ए बी पे, दे विल बी इक्वल 70 70, ठीक है? और टोटल कितना हो गया ये 70 प्लस 30 100 डिग्री. तो ऑपोजिट कितना हो गया? दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि साइक्लिक है तो ये आपके पास हो गया 80 डिग्री. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी देन ई सी डी फाइंड आउट करना है. इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी बी सी के इक्वल है तो ई सी डी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. सो सिंपल, सॉरी, इट्स लाइक दिस. If AB is equal to BC, then you have to find out angle ECD, this one. ठीक है, ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली ये तो आपको गिवन ही है टोटल एंगल, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, राइट? ये एंगल आपको 30 गिवन है, 70 सॉरी, दिस वाज 70 70, ये आपने फाइंड आउट किया था 30. अब ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. दीज टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए 30 30. ये टोटल था 80, 80 में से 30 माइनस करोगे कितना आएगा 50 डिग्री. तो एंगल ECD कितना हो गया 50 डिग्री, राइट? लेट्स रिपीट दिस क्वेश्चन. हियर we have given a cyclic quadrilateral, say ABCD,
This point is E, where diagonals are intersecting each other, and angle DBC is given 70. This angle is given BAC 30 degree. आपको फाइंड आउट करना है ये एंगल. ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा एंगल्स इन सेम सेगमेंट. ठीक है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट हो गया 70 एंड 70. टोटल हो गया ये 100. ऑपोजिट हो गया 80 डिग्री बाय एंगल सम, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से. फिर कह रखा है ए बी बी सी के इक्वल है सपोज, तो ECD फाइंड आउट करो. इफ AB equal to BC, then in this triangle this angle is 30, this angle is also 30. So rest वाला ये कितना बच गया, 80 में से माइनस करके 50 डिग्री. That was the question, right?